Student, will continue the topic what we studied last time, that is classification of colloids. Last time हमने दो classification या फिर दो different ways पढ़े थे classification of colloids के. Now we'll going to see the final way of classification of colloid, that is based on molecular size. Okay, classification of colloids based on molecular size. See, according to the molecular size, the colloids are classified into three types. One is multimolecular colloid, second macromolecular, and the third one is associated colloids or mycel. Okay, अब देखते हैं multimolecular colloids. The first one, in this case, the individual particle consists of an aggregates of atom or small molecules with size less than 10 raised to 3 pm. Understood? Here multimolecular colloids, the individual particle consists of aggregates of atom or a small molecule with the size less than 10 raised to 3 pm. तो यहाँ पे मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स में क्या होगा कि सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स होंगे, मे बी द साइज लेस देन 10 raised to 3 पिकोमीटर होगा वहाँ पे, एंड दैट आर एक्चुअली अट्रैक्टेड टुगेदर बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Okay, attracted together because of what? Van der Waals force of attraction, and that's why they are collected together and forms the particle. जैसे किसी भी एटम हम लोग ले लेंगे या फिर यू कैन से द एलिमेंट ओनली. जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है गोल्ड सोल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज हैविंग सेवरल गोल्ड एटम्स. ओके, सो द गोल्ड सोल है, अगर गोल्ड सोल है तो अगर नंबर ऑफ सोल्स वी आर हैविंग और कोलाइडल पार्टिकल वी आर हैविंग, तो गोल्ड एलिमेंट अगर 3-4 टुकड़े ले लो हम लोग तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें. सो पार्टिकल साइज विल बी डिफरेंट ऑफ दैट सोल, बट सिमिलर टाइप ऑफ एटम दैट इज गोल्ड ओनली विल बी देयर इन दैट थिंग्स. Understood? And having the particle size but obviously less than 10 raised to 3 picometer over there. So multimolecular colloid में similar type of atom होता है. Okay, and having similar type of atoms forms the different size of a colloidal soul over there. ठीक है. Here the colloidal solution in which the particle are held together by van der Waals force of attraction, that is called multimolecular colloids. Okay guys, example acid sulfur molecule. So ये हो गया मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, सिमिलर टाइप ऑफ एटम फॉर्म्स दैट सोल. ओके, एंड यहाँ पे क्या है मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स. Now in case of a macromolecular colloids, the molecules of the dispersed phase are sufficiently large in size to be to the colloidal dimension. Understood? Here the macromolecular colloids, macro यानी क्या? Bigger size particle. Understood guys? So the molecule of the dispersed phase, generally dispersed phase यानी solid, this one we can say solute particle, are sufficiently large in size, that is in macro size, to be of colloidal dimension. कोलाइडल डायमेंशन से लिटिल बिट मोर साइज में रहेंगे यहाँ पे. एग्जाम्पल है स्टार्च सोल्यूशन, सेल्यूलोज, प्रोटीन. अंडरस्टूड? इवन पॉलीथीन, नाइलॉन, प्लास्टिक्स, दीज आर दी एग्जाम्पल्स. ओके, स्टार्च सोल्यूशन है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन, पॉलीथीन मीन्स दैट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लास्टिक एक्चुअली. ओके, पॉलीथीन बैग्स जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो इथीन से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है उसको. नाइलॉन, दैट इज़ ऑल्सो पॉलीमर. Plastic is also a polymer. So these are the polymers generally are the example of a macromolecular colloids having a little bit bigger particle size. Understood? And the third one is associated colloids or the mycel. Okay, associated colloids or the mycel. I think so mycel word शायद आपने सुना है in the 10th standard. हाँ? See here, substance behave as normal electrolyte at low concentration and associated in higher concentration, forming a colloidal solution. These associated particles are called to be the mycel. अब देखो, जब हम लोग सोप सोल्यूशन का ही बात कर लेते हैं, स्मॉलर कॉन्सेंट्रेशन में यानी थोड़ा बहुत सोप हमने डिज़ोल्व कर लिया या फिर डिटर्जेंट डिज़ोल्व किया इन वाटर ओनली, क्या होगा? इट वी कैन से इट इज़ अ नॉर्मल सिंपल सोल्यूशन. Okay, it behaves as a simple solution, but higher concentration या फिर higher amount of a soap is dissolved in limited quantity of a water only, then concentration becomes higher, and that's why that serves as a colloidal solution. Okay, that mixture serves as a colloidal solution. I repeat, guys, if smaller concentration of a say soap dissolved in a water, it remains as a normal solution. But higher concentration of a soap या फिर detergent dissolved over here, especially in water, so that higher concentrated solution is said to be the colloidal solution over here. Understood? क्यों? क्योंकि यहाँ पे that the particle of soap
or the molecules of a soaps are aggregate together. Understood? एक दूसरे के साथ आ जाएंगे because of the higher concentration, and because of that aggregation only that micelle formation will be there. Understood? अब वो micelle formation क्या है? Let's see that micelle formation with the help of example, diagram and other explanation also. See here, soap molecule has long hydrophobic hydrocarbon chain. अब सोप जो है तो उसमें एक लॉन्ग चेन रहता है. अंडरस्टूड? एंड दैट चेन इज हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन. हाइड्रोकार्बन चेन यानी अ चेन फॉर्म बाय द हाइड्रोजन एंड कार्बन. अंडरस्टूड? तो हाइड्रोफोबिक चेन मतलब that chain is repelled by the water molecule. Understood? Water hating. Hydrophobic यानी hydro means water, phobic यानी hate करना, and hydrophobic hydrocarbon chain, that is water hating hydrocarbon chain. And another part it contains that hydrophobic hydrocarbon chain is said to be the tail attached to hydrophilic ionic group. Okay, that is carboxylate group. Hydrophilic यानी the loving substance, water loving substance, and that water loving substance is said to be the head. यानी simply अगर long chain है सोप सोल्यूशन, सोप का या फिर डिटर्जेंट का, स्पेशली सोप का हम लोग कंसिडर करेंगे, तो जो हाइड्रोकार्बन चेन है इज़ दी हाइड्रोफोबिक चेन यानी वाटर हेट hated chain, said as tail, and that head part, main part is said to be the हाइड्रोफिलिक कंपाउंड. हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग कंपाउंड. अंडरस्टूड? यानी अगर आप सोप डिसॉल्व करते हो वाटर में तो एक्चुअल में आयोनाइजेशन किसका होगा? हेड पार्ट का होगा, बिकॉज इट इज डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, डिसोसिएट्स आफ्टरवर्ड्स, एंड देन इट फॉर्म्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्पीसीज. द हाइड्रोकार्बन चेन डू नॉट डिसोसिएट ओवर देयर. अंडरस्टूड? सो सोप को दो पार्ट हो गया, एक तो लॉन्ग टेल और एक हेड पार्ट. अंडरस्टूड? टेल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वाटर हेटेड, water repellent, and head part is the hydrophilic, that is water loving. Understood? In water the soap molecule arrange themselves in the form of spherical particle that are called micelle. Understood? तो soap particle खुद को arrange करता है in the form of a spherical particle. See, you can see on the screen also spherical particle के form में. In each micelle the hydrophobic tail of the soap मॉलिक्यूल पॉइंटेड टूवर्ड्स द सेंटर. जो आप ब्लू और वो जो डॉट दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे बलून जैसा, बलून को थ्रेड बांधा हुआ ऐसा दिख रहा है. सो दैट थ्रेड लाइक से लाइन इज देयर, दैट इज द हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन. अंडरस्टूड? एंड दैट ब्लू dot you are observing over here, that is actually the head part. Okay, the labeling is also there, that the blue part is the head part, and that the lining is nothing but the hydrophobic tail. Understood? So when you dissolve a soap into the water only, then there is a formation of a micelle. Micelle यानी aggregation of that soap solution, soap particle in a spherical form, जहाँ पे the tail particles actually concentrated in the center of the water. Okay, tail part of that soap concentrated in the center, और head part जो होगा वो ऐसे राउंड फिगर रेडी कर लेगा, जो you can see on the screen. Understood? So in each micelle the hydrophobic tail of soap molecule point to the center, and hydrophilic head, actually hydrophobic लिखा है guys, पर hydrophilic head है. ठीक है, make the correction. Hydrophilic head lies on the surface of the sphere. As a result of this, soap dispersion in water is stable. Understood? So whatever the soap solution is there, that is stable, remains stable. Okay, अब ये माइसिल फॉर्मेशन से होता क्या है एक्चुअली? यहाँ पे एग्रीगेशन ऑफ ऑल दी हेड दिस वन द सोप पार्टिकल्स ओवर हियर इन द वाटर, और सराउंडिंग में वाटर है, H2H2O लिखा है. टेल पार्ट सेंटर में चला जाएगा, हेड पार्ट साइड में रहेगा. अब ये यहाँ पे दिस माइसिल फॉर्मेशन एक्चुअली हेल्प टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल और द ऑयल पार्टिकल ओवर हियर. अंडरस्टूड? ये जो सोप सोल्यूशन, कभी भी आप सोप को डिज़ोल्व कर लोगे वाटर में या फिर तो वो ऐसे ही माइसिल फॉर्म करता है. इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप की से थिंग्स अटैच है ऑन द फाइबर टू क्लीन. जैसे समझो कि क्लोथ के ऊपर डर्ट पार्टिकल है, तो डर्ट पार्टिकल हेड पोर्शन ऑफ द सोप विल रिमूव. अंडरस्टूड? सिंपल सा डर्ट है, धूल वगैरह लगी हुई है. एंड इफ़ द ऑयल पार्टिकल विल बी देयर ऑन द क्लोथ, और वो साफ़ करना है और उसके ऊपर सोप सोल्यूशन अप्लाई कर दिया, देन द ऑयल में जो माइसिल फॉर्म से वो जो सेंट्रली हाइड्रोफोबिक टेल है, वो टेल
पेनिट्रेट करेंगे। समझ लो कि ऑयल पार्टिकल है, ऑयल डॉट है, और उसमें ये टेल पेनिट्रेट हो जाएंगे। ओके, टेल पार्टिकल पेनिट्रेट हो गए तो क्या हो जाएगा, दैट ऑयल जो है, जो ड्रॉपलेट्स हो गए ऑयल के ऑन द क्लोथ, इट विल बी ब्रेक इनटू द स्मॉलर पार्टिकल। अंडरस्टूड? जो बड़ा ड्रॉपलेट होगा तो उसको स्मॉल पीसेस में सेपरेट करेंगे। दैट टेल पार्टिकल पुल द ऑयल फ्रॉम द फाइबर ओनली और फ्रॉम द क्लोथ ओनली, और उसके बाद फिर वो ऑयल ड्रॉपलेट को वाटर में मिक्स कर देगा। अंडरस्टूड? वाटर में, बट ऑब्वियस वो इमल्शन फॉर्म करेगा। तो इस तरह से क्लोथ से ऑयल निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस माइसिल फॉर्मेशन। इवन क्लोथ से डर्ट पार्टिकल, तो डर्ट पार्टिकल निकालता है हेड पार्ट, एंड यानी धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी लगा हुआ हो तो, एंड द ऑयल ग्रीस वगैरह लगा है, सो दैट विल बी रिमूव्ड बाय द टेल पार्ट। सो दिस इज द केस, दिस वन means the dirt or the oil part is removed by the micelle formation only, and that's why micelle formation is very much important, okay, when we mix soap into the water. Okay guys, so here micelle formation is actually the colloidal solution because we use higher percentage of or higher concentration of a soap in a water only. Okay, so ये है classification of a colloids based on molecular size. One is multimolecular, second one micromolecular, ये था multimolecular, then micromolecular colloids, and finally associated colloids or the micelle formation. Here guys we finish the classification. Okay guys, चलो फिर we'll move ahead. Preparation of colloids, यहाँ पे प्रिपरेशन की भी 3 मेथड्स है। वन इज़ केमिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन बाय ब्रेडिगाक मेथड, एंड नेक्स्ट वन इज पेप्टाइजेशन मेथड। 3 मेथड है। विल सी द सिंपल मेथड, दैट इज़ केमिकल मेथड, जो कि हम लोग नॉर्मल लैब में we can prepare this sol or the colloids. First reaction you can see over here, SO2, that is sulfur dioxide, plus 2H2S, that is hydrogen sulfide. When it react, means SO2 and 2H2S react, there is a formation of 3S को डाउनवर्ड एरो दिया है गाइज। डाउनवर्ड एरो मतलब क्या है, इट फॉर्म्स द PPT ओवर देयर। अंडरस्टूड? सो दैट इज अवर सोल, सल्फर सोल, प्लस 2H2, that is water molecule form as a byproduct over there. Second, 2AlCl3, AuCl3, sorry, AuCl3 यानी this is AU means gold guys, हाँ, this is oro chloride or oro chloride, plus 3HCHO, that is formaldehyde, plus 3H2O, there is a formation of 2Au in a solid state, that is gold sol यहाँ पे form हो रहा है, plus 3HCHOOH plus 6HCl. Understood? This is the second reaction, and the third one is, अब सेकेंड रिएक्शन में एक मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। 3HCOOH शुड बी देयर, नॉट 3HCHOOH। ओके, तो HCOOH, अंडरस्टूड? वो जो CH है उसमें से एक H निकाल देना प्लीज़, जब इफ़ यू राइट इन द नोटबुक। ओके गाइज, थर्ड वन FeCl3 plus 3H2O, FeCl3 ferric chloride plus 3H2O forms FeOH thrice plus 3HCl. Okay, FeOH thrice plus 3HCl. So these are the 3 chemical method. Simple, जहाँ पे डाउनवर्ड एरो है मतलब वो सोल फॉर्म हुआ है। You need to remember at least 2 chemical method, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। Write any 2 chemical method of formation of or preparation of colloids. So first, or I think so third one is better for you to remember and those reaction for the longer period of time. So 2 reaction आसान है, prepare कर लेना। Okay, next one is electrical disintegration by Bredig-Arc method. देखो यहाँ पे एक्चुअली दिस प्रोसेस इज जनरली इन्वॉल्व वेपराइजेशन एज वेल एज कंडेंसेशन। वेपराइजेशन होगा यानी सॉलिड का लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होगा, एंड दैट वेपर विल कंडेंस बैक अगेन, यानी वेपर का अगेन कन्वर्ज इनटू द लिक्विड स्टेट। सो सॉलिड vaporization, sorry, not melting. So vaporization means not solid, liquid to gas and gas to liquid, ये प्रोसेस होगी। वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, लिक्विड टू गैस, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल यहाँ पे सोल सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। सो हियर दिस इज द डायग्राम वेयर दिस वन इज डायग्राम फॉर द Bredig-Arc मेथड। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखो आइस है, जो ग्रीन डॉट दिख रहा है, वो ग्रीन जो क्यूब्स दिख रहा है दैट इज आइस। ओके, उसके बाद एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे वाटर है, ब्लू कलर में वाटर दिया। Now 2 electrodes are there, जो V शेप में दिख रहा है, the 2 electrodes are connected to the external circuit over there with the help of connecting wires। और सेंटर में जो है, जो the metal है जो प्लेस करते हैं जनरली,
जिसका कि हमें सोल बनाना है। अंडरस्टूड। अब देखो प्रोसेस यहाँ पे क्या है। इन दिस मेथड इलेक्ट्रिकल आर्क इज स्टक बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ मेटल इमर्ज इन डिस्पर्सन मीडियम ओवर हियर। देखो सेंटर में इलेक्ट्रिकल आर्क है जो कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में है। अंडरस्टूड। दो जो लाइन के बीच में वी शेप दिख रहा है ना, दैट दीज आर द टू इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड। उसके बीच में आर्क, दैट मेटल इज देयर मेटल आर्क, और जो कि डिस्पर्स हुआ है इनटू और डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और द डिस्पर्सन मीडियम। अंडरस्टूड। वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम ओवर हियर। क्या करेंगे, द इंटेंस हीट प्रोड्यूस द वेपराइजेशन। हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। हीट कैसे प्रोड्यूस होगी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड ओनली। जो भी इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करेंगे तो वो एक्सटर्नल सर्किट यानी इलेक्ट्रिकल सोर्स हीट द इलेक्ट्रोड, दैट इलेक्ट्रोड देन विल हीट द मेटल सब्सटेंस ओवर हियर, देन इंटेंस हीट की वजह से द मेटल विल गेट वेपराइज। जो वेपराइज होंगे, सराउंडिंग में कूलिंग एटमॉस्फेयर है, वाटर भी है, और आउटसाइड द कंपार्टमेंट द आइस आर ऑल्सो देयर। ओके, तो आइस क्यूब्स आर ऑल्सो देयर। सो क्या हो जाएगा, वो जो वेपराइज मेटल है वो कंडेंस भी हो जाएगा तुरंत ही। ओके, सो दैट द वेपराइज मेटल गेट्स कंडेंस टू फॉर्म्स दैट कोलाइडल सोल। सो सिंपल सा मेथड, मेटल को पहले हीट करेंगे उसके बाद फिर कंडेंस करेंगे। सो इससे हमें वो सोल पार्टिकल मिल जाएगा। अंडरस्टूड गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेडिक आर्क मेथड। एंड द थर्ड वन इज द पेप्टाइजेशन। द थर्ड मेथड पेप्टाइजेशन यानी प्रेसिपिटेशन एक्चुअली होता है यहाँ पे। सी, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन अ प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सोल। अंडरस्टूड। प्रेसिपिटेट गाइस, प्रेसिपिटेट यानी क्या, दीज आर द पार्टिकल एक्चुअली विच रिमेन्स अनडिजॉल्व इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट में ये करेंगे तो फिर वो अनडिजॉल्व रहेंगे, या फिर आफ्टर द रिएक्शन अनडिजॉल्व पार्टिकल विल बी फॉर्म इन द सोल्यूशन। अनडिजॉल्व पार्टिकल, ओके, form in the solution, that is called to be the precipitate. So here in this case precipitate is converted into colloidal soul by shaking with the dispersion medium. Understood. जो भी अनडिजॉल्व पार्टिकल है वो सोल में कन्वर्ट करेंगे बाय शेकिंग इट विद द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक करके इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओवर हियर। तो इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली स्टेबलाइजर भी होगा यहाँ पे, एंड इट कन्वर्ट्स दैट PPT into the soul as well. During the process of peptidization, the precipitate adsorb one of the ion of electrolyte. जो PPT होगा वो क्या कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा वन ऑफ द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में दो आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अंडरस्टूड। तो एड्जॉर्ब कर लेगा ऑन द सरफेस वन ऑफ द आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द प्रेसिपिटेट। पॉजिटिव आयन अगर एड्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव आयन एड्जॉर्ब करेगा तो नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड दैट चार्ज विल डेवलप ऑन द प्रेसिपिटेट ओनली, विच फाइनली ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सोल। सो PPT को कन्वर्ट कर लेगा इनटू द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ अ कोलाइडल ओवर हियर। अंडरस्टूड गाइस। सो PPT जो होगी, PPT यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट फर्स्ट ऑफ ऑल एड्जॉर्ब द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अंडरस्टूड। आयन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो टोटल PPT को चार्ज मिलेगा पॉजिटिव, नेगेटिव आयन एड्जॉर्ब करेगा तो नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। एंड दैट आयन यूज टू ब्रेक डाउन दैट bigger particle size PPT into the smaller size colloidal particle. So in such a way peptidization method help to prepare PPT or help to convert PPT to colloidal particle. So these are the three methods: peptidization, Brady arc method, and next simple one, the first one was the chemical method. Understood guys? So these are the three preparation method. Thank you.